প্রেজ গড, হ্যালেলুয়া। অনুগ্রহ পরিবার, আমরা আর একবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ঈশ্বরের মহান বাক্যকে নিয়ে। আমরা সবাই জানি এখন লকডাউন চলছে, ঘর থেকে বেরোতে পারছে না মানুষজন, ঘরেই বন্দি। আশা করি আপনাদের কারো ভালো লাগছে না, আমারও ভালো লাগছে না। আমার দুটো বাচ্চা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, বাবা ঘুরতে কবে যাব? আজকে আমার ছোট মেয়ে বাইরে এসেছিল আমার গেটটা খুলে দেওয়ার জন্যে, আর বলছে বাবা মনে হচ্ছে এইটাই আমার জন্য একটা বড় ট্যুর হলো। সত্যি আজকের সকালে প্রত্যেক মানুষ কিন্তু সত্যি করে খুশি নয়, আনন্দিত নয়। আমার ভাই ক্যানাডাতে বাড়ি কিনেছে, আমাকে ফোন করেছিল পরশুদিন রাত্রেতে, বলছে দাদা আমি ক্যানাডাতে বাড়ি কিনেছি। আমি বললাম আমার খুব ভালো লাগলো শুনে, কিন্তু তারপরে আমি তাকে সত্য বললাম। তারা প্রভু যিশুকে জানে না। আমি র্যাপচারের কথা বললাম, আর যখন আমি র্যাপচারের কথা তাকে বলতে লাগলাম, সে চুপ করে শুনতে লাগলো। আর কিছুক্ষণ পরে আমাকে বলছে, দাদা তুই কি আমাকে ভয় খাওয়াচ্ছিস? আমি বললাম না, আমি ভয় খাওয়াচ্ছি না, আমি সত্য বলছি। সে আমার সাথে কোনো বাদ বিবাদ করলো না, সে ধীর স্থির হয়ে সেই কথাগুলো শুনলো যে আগামী দিন কি হতে চলেছে। আর আমি তাকে বললাম ইন্টারনেটে পড়বি র্যাপচারের সম্বন্ধে, আর আমি যেটা বলছি কোনো কাল্পনিক নয়, সেটা বাস্তব। আজ ধীর স্থিরভাবে সে শুনে বলল, দাদা আমি নিশ্চয়ই পড়ব। পরে যখন বিষয়টাকে আমি চিন্তা করতে লাগলাম, আমার ভাই কানাডাতে রয়েছে, শিক্ষিত, সব কথা কিন্তু সহজে গ্রহণ করে না, কিন্তু যখন এই সত্যটাকে বললাম, এই সত্যটাকে গ্রহণ করলো। কেন জানেন? কারণ কি এই সত্যটা সত্যি বাস্তব হতে চলেছে। আমেন। প্রভু যিশু শীঘ্রই আসতে চলেছে। প্রকাশিত বাক্যর 12 অধ্যায় 7 থেকে 10 পদে কি লেখা রয়েছে আসুন আমরা পড়ি। Revelation chapter 12 verse 7 to 10. Then there was a war in heaven. কোথায় যুদ্ধ? There was a war in heaven. স্বর্গেতে যুদ্ধ হচ্ছিল। Michael and his angels fought against the dragon and his angels. And the dragon lost the battle, and he and his angels were forced out of heaven. This great dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to earth with all his angels. Then I heard a loud voice shouting across the heavens, it has come at last, salvation and power and the kingdom of our God and the authority of his Christ, and the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to death, the one who accuses them before our God day and night. तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि एक घंघोर लड़ाई हो रहा है। There is a war that is going on. Do you know this? क्योंकि एक युद्ध चल रहा है, उसीलिए हम लोग उसको फील कर रहे मगर देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये युद्ध आत्मिक स्तर में हो रहा है, हमारी आंखों के सामने में नहीं, मनुष्यों को बीच में नहीं। उसीलिए एक तनाव, एक कष्ट, एक डिप्रेशन, एक एगनी से आप गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूं। उसीलिए बार बार परमेश्वर के सामने मैं आ रहा हूं और खुदा से मैं पूछ रहा हूं कि प्रभु मुझे बल दे, प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे अनुग्रह से भर दे। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, बिना आपके सहमत और शांति के मैं शांत नहीं रह सकता हूँ। डू यू फील दिस? क्या आप इस दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं? कुछ खराब देख नहीं पा रहे हैं आंखों के सामने में, मगर बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स में आपको उस मौत के विषय में आप सुन रहे हैं। लॉकडाउन पड़ा हुआ है, महंगाई बढ़ रहा है, इश्यूज बढ़ रहा है, मगर आप घर में हैं, मगर तब पर भी आप घर में शांति में नहीं है। हिंदी में आई वांट समबडी टू रीड आउट फॉर मी। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उनके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही।
और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। दोस्तों, मैंने आप लोगों से शेयर किया था क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रकाशन दिया था और पंचभूता के विषय में आप लोगों मैंने चर्च शिक्षा दिया। पंचभूता, ये पंचभूता क्या है? अग्नि, वायु, पाताल यानी कि पृथ्वी, आकाश और पानी। पंचभूता फिर से मैं बता रहा हूं, आकाश, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। यानी कि लोग सोचते हैं, हिंदू शास्त्र लोग सोचते हैं कि ये पंचभूता से पृथ्वी सृष्टि हुआ है और हर एक मनुष्य के अंदर में पंचभूता पाया जाता है। मगर आज अगर ये परमेश्वर की वचन के आधार में इस बात को आप विश्लेषण करने चाहते हैं तो मैं आपको बताने चाहता हूं कि आकाश में, मध्य आकाश, अगर आप इफिसियन की पुस्तक पढ़ेंगे वहां लिखा गया है कि वी फाइट नॉट विथ फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि शरीर और मांस से हम लड़ते नहीं है मगर अंधकार की जगत की अधिपतियों से हम लड़ रहे हैं जो आकाश में रहता है। इट इज इन द स्पिरिचुअल हाइट। बहुत सारे समय में इस गीत को आपने गाया है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और देखो उत्तर नीचे आती है, और बीच में शैतान हमारी प्रार्थना को रोकने की कोशिश करता है। डैनियल ने भी प्रार्थना किया था एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया उसकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक मध्य आकाश में घंघोर लड़ाई हो रहा है। द स्पिरिचुअल फाइट इज ऑन। आप इसे देख नहीं पा रहे हैं मगर महसूस कर पा रहे हैं। यू कैन फील इट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप कैसे गुजर रहे हैं, यानी कि शांति कम होते ही जा रहे हैं। दुख, परेशानियां, कंफ्यूजन, एरर्स, डिप्रेशन, ऑप्रेशन, कंफ्यूजन, ये सारी चीज चारों ओर आप देख पा रहे हैं। आप न्यूज खोलेंगे तो सुनेंगे ये मर गया, ये कैलामिटीज आ चुका है, ये वायरस आ चुका है, ये आ रहा है, यानी कि नथिंग गुड इज हैपनिंग। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। मैं बता रहा हूं यानी कि चीज बेहतर नहीं होगा, चीज और खराब होते ही जाएगा। बिकॉज द वॉर हैज ऑलरेडी बिगन बट दिस वॉर विल बिकम वेरी वेरी इंटेंसिफाइड। ये युद्ध और गहरा और घंघोर होने वाले हैं दोस्तों। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वचन कह रहा है। ये युद्ध और घंघोर और खराब और दर्दनाक होने जा रहा है। बट दोस्तों, यह वचन साफ रीति में कहता है देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, द किंगडम ऑफ अ गॉड, द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है क्योंकि परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। और इसके बाद क्या क्या होने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूं। आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन, बट आई टेल यू कि चीज हमारे चारों ओर इतना खराब होते जा रहा बिकॉज देयर इज अ वॉर विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। आमोस की पुस्तक में कह रहा है क्यों ये युद्ध शुरू हो चुका है, क्यों चारों ओर पूरा पृथ्वी में इतना सन्नाटा छाया हुआ है, क्यों इन सारी चीज हो रहा है, क्यों चर्च बंद है, क्यों लॉकडाउन है। आइए हम लोग पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक, आमोस चैप्टर 5 वर्स 12। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पाप भारी है। दोस्तों, परमेश्वर बहुत बार हमें बताया, आपको बताया, चर्च से प्रचार हुआ, लोग आपके घर में गए, पवित्र आत्मा आपसे कहा कि बेटा बदल जाओ, बेटी बदल जाओ, मगर 2 दिन आप बदलते हैं मगर तीसरा दिन फिर से आप अपने पुराना जीवन में स्वभाव में चले आते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं। बीते 17 साल से मैं और मेरी पत्नी इस शहर में हम लोग ने सेविकाई किया। अगर सबको एक संग आज यहाँ लेके आते हैं तो करीब 20,000 लोगों को हम लोग ने परमेश्वर को वचन सुनाया। अगर आज वो सारे लोग एक लोग रहते पहला दिन से आज तक 20,000, और उसके द्वारा और कितने लोगों को पास गया है ये शहर में मैं बता रहा हूं दोस्तों। मगर कहाँ है वो लोग?
वो आते थे परमेश्वर के पास, प्रार्थना को लेते थे, चंगाई हुआ, उसके बाद वो चले जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर से वो अपने पाप के जीवन में चले जाते हैं। एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताने चाहता हूं। एक लड़की किसी के द्वारा मेरी पत्नी से संपर्क में आया और कहा कि मैडम, मेरा जीवन बहुत खराब हो गया, मैं जिससे शादी किया वो मुझे छोड़कर चला गया, अब मुझे पता चल रहा कि मैं 5 महीना की प्रेग्नेंट हूं, मैं सोच रहा हूं जाकर इस बच्चा को गिरा दूं और मैं केस लड़ूंगा। कोई कहा कि आप प्रार्थना करने से चमत्कार होता है, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास। मेरी वाइफ ने उस सिस्टर के लिए प्रार्थना किया, उससे कहा कि तुम चर्च आओ। एक दिन वो चर्च आई और 1 सप्ताह पहले फोन आता है और कहता, मैडम आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सब ठीक हो गया। मेरे मिसेस ने पूछी क्या हुआ? मेरा पति मुझे अपना लिया। हालेलुया। सुनकर अच्छा लगा, प्रभु को धन्यवाद दिए। फिर से वो कही कि मैडम सब कुछ ठीक हो गया। मेरे मिसेस ने कहा कि मेरे लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हाँ मैडम, क्या सचमुच ये बहन प्रभु को जिंदगी भर अपना जीवन दे देगी? पता नहीं मुझे। यानी कि परमेश्वर तो भला है। इज़राइल के लोग जब रोते थे और कहते थे कि परमेश्वर आपकी दृष्टि हमारे ऊपर कीजिए, प्रभु अपना दृष्टि दिखाता था, अपना दया दिखाता था, करुणा दिखाता था, प्रबंध देता था, चमत्कार करता था। मगर फिर से क्या होता था? इज़राइल के लोग बिगड़ जाते थे। इज़राइल लोग তারা কি করতো? প্রভু থেকে দূরে চলে যেত। আজকে কিন্তু পাপের কলসি ভরে গেছে। ওই জন্য বাইবেলের বাক্য পরিষ্কার করে বলছে, আমি জানি তোমার পাপের কার্যগুলো, তুমি যে কাজ করেছো, তুমি যে আমার বিরুদ্ধে জীবনযাপন করেছো, তুমি যে গরিবদেরকে তুমি তাদের গলা টিপে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছো, তুমি ঘুষ দিয়েছো, তুমি অন্যায়ের সাথ দিয়েছো। দ্যাটস হোয়াট ইট সেজ। আমোসের 5:12 এই কথা বলছে। তুমি জানতে সত্য, কিন্তু তুমি সত্যর সঙ্গে কোনোদিন জীবনযাপন করোনি। ওই জন্য আমোসের পুস্তক 5 অধ্যায় 13 পদ কি বলছে জানেন? इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुपका रहे, क्योंकि समय बुरा है। इंग्लिश में बहुत अच्छी रीति में कहा गया है, कहता है कि सो दोज हु आर स्मार्ट कीप देयर माउथ शट, फॉर इट इज एन इविल टाइम। मैं जस्ट कुछ दिन पहले मेरी पत्नी को कह रहा था कि सरिता जानती हो हमारे मुंह में मास्क क्यों है? इट इज अ सिंबल टू कीप आवर माउथ शट। हमारे मुंह में मास्क क्यों है? हमारे मुंह के मास्क क्या আছে? चुप करो। इट्स लाइक एनफ, तुमने बहुत बोल लिया, तुमने बहुत बोल लिया। इट्स अ टाइम टू बी क्वाइट, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक। परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं बोलूंगा, अब मैं करूंगा। उसीलिए मनुष्य वो आज कुछ नहीं कर पा रहा है। इस कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं, साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े लोग समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें। दे आर ट्राइंग, एवरीबडी इज ट्राइंग, मगर इस कहर को लोग रोक नहीं पा रहा है दोस्तों, बिकॉज लॉर्ड इज वर्किंग नाउ, ही इज वर्किंग। उसी वचन कहता है अपने मुंह को बंद करो। और 14 से पढ़िए। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। आमीन, हालेलुया। अभी भी समय है दोस्तों, युद्ध तो चल रहा है, मगर ये युद्ध और घंघोर होने वाला है, और बुरा दिन आने वाला है, और चीज जो आप कल्पना भी नहीं किए हैं उन सारे चीज होने वाला है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा गया है और ये होना ही है। अंत का दिन तो होना ही है।
प्रकाशित वाक्य में साफ रीति में सारी चीजों को उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, मैं नहीं कुछ कहानी सुना रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर की वचन बांट रहा हूं आज सुबह। उसने परमेश्वर अभी भी कह रहा है कि अभी भी दोस्तों समय है, अभी भी मौका है। उसीलिए अपने बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की और भलाइयों की ओर दौड़ो। अगर तुम दौड़ोगे तब तुम जियोगे, देन यू विल लिव। बुराइयों को अगर तुम छोड़ोगे दोस्तों, आज ये दिस इज अ कॉल फॉर टुडे फॉर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी, इवन फॉर माई सेल्फ। इफ देयर इज एनीथिंग, अगर कोई ऐसे चीज में आप फंसे हुए हैं, अगर कोई ऐसी चीजों को आप करते हैं, खुदा कह रहा है कि छोड़ो उससे। शायद वो आपकी बहुत एक प्रिय चीज है। पाप सर्वदा अट्रैक्टिव है दोस्तों, पाप करना अच्छा लगता है, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैवी है। उसीलिए बहुत सारे लोग पाप करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। बट टुडे द लॉर्ड सेज रन 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 फ्रॉम इविल, बुराई से भागो और परमेश्वर की भलाई की ओर आओ, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर, द गॉड ऑफ द हेवन आर्मीज, तुम्हें हेल्प करेगा। वाई हेवन आर्मीज, इसको कभी सोचे हैं हिंदी में व्हाट इज कॉल्ड? स्वर्ग के सेनाओं का परमेश्वर, स्वर्ग की सेनाओं का परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। हैव यू एवर थॉट दैट गॉड इज अ गॉड ऑफ सबायोत? इसका मतलब है परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है, यानी कि लड़ाई हो रहा है। सेनाओं का परमेश्वर यानी कि लड़ाई हो रहा है, लड़ाई जंग शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु का दया है। इसलिए 15वीं पद क्या कह रहा है? बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्योंकि जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ से बचे हुए पर अनुग्रह करे। आमीन। अभी भी समय है, जो बुरा है उससे घृणा कीजिए, जो अच्छा है उससे प्यार कीजिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर तो यही है, क्योंकि हमारे परमेश्वर तो यही है। दोस्तों, वो बुराइयों को घृणा करते हैं, अच्छाई को गला लगाते हैं। वो सच्चाई का परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है। खुदा कह रहा है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाओ दोस्तों, मिथ्या के लिए नहीं। इस दुनिया में मिथ्याओं के लिए जो खड़े होते हैं उसे वाहवाही मिलता है, यानी कि सच्चाई को क्या कर देता है? वो तोड़ देता है, उलट देता है। मगर परमेश्वर सब चीज को देखा है, देख रहा है, अब वो बोल रहा है। इसका पहले लोग बोल रहे थे सारी बदमाशी बंद कर दो, ये वचन कह रहा है मैं नहीं, सुधर जाओ, अभी भी समय है। खुदा अपने करुणा और दया से हमें दिखा रहा है कि हम परमेश्वर के और अपने मन को फिरा ले, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दे। अगर हम नहीं करेंगे, इसकी भी एक परिणाम है दोस्तों। आइए 16वीं पद क्या कहता है? इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, अब चौंको मत, मैं रोना पीटना होगा। अब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे। दोस्तों, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब रोना पीटना होगा। रोना पीटना शुरू हो चुका है। अब तक रोना मोटा मोटी सभी का घर में किसी को तो ले ही लिया है। दोस्तों, मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, एक व्यक्ति मुझसे कहा कि सर आप जानते हैं मैं जहां रहता हूं उस मोहल्ला में 11 लोगों की मौत हो गया, एक ही घर में, एक ही घर में 11 लोगों की मौत। ये तो आमोस की पुस्तक में लिखा गया है कि घर में जब सब कोई मर जाएगा, उसके रिश्तेदार आएंगे और पूछेंगे और कोई बाकी है। ये तो शुरू हो चुका है, मगर ये बढ़ेगा, ये और घंघोर होगा। मत सोचिए कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, नहीं होगा।
क्योंकि परमेश्वर के वचन को पूरा होना है। पाप की घड़ा भर चुका है और परमेश्वर सह नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने अपना जीवन दिया कि हमें मौका मिले। चर्च की जन्म कब हुआ था जानते हैं? पेंटिकॉस्ट के दिन ऊपरी रूम में जब यीशु चला गया, अपने शिष्यों को कहा कि यरूशलेम मत छोड़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा। और ऊपरी उस घर में, रूम में उसके शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, और पवित्र आत्मा आया और वो लोग भिन्न भिन्न भाषा में बात करने लगा। चर्च की शुरुआत हुआ था पेंटिकॉस्ट के दिन में। बहुत सारे स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स क्या कह रहे जानते हो? वो कह रहे कि चर्चेस खत्म हो रहा है। अब देखिए लॉकडाउन चर्च नहीं हो पा रहा है। विदेश में भी फिर से मैं सुन रहा था, अमेरिका में आ रहा ये वायरस, रिलैप्स कर रहा था। यानी कि नो वन कैन से दैट वी आर सेफ, वी आर फाइन। दोस्तों, द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दिस, चेंज योरसेल्फ। अभी भी समय है, अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि ये रोना पीटना और बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? एक फार्मर्स आंदोलन हो रहा है, यानी कि जो कृषि के लोग हैं, 6 महीना हो बीत चुका है, पता नहीं अगले साल अगर प्रभु यीशु नहीं आता, खाना पीना लोगों को मिलेगा कि नहीं। ताकि किसान लोग तो सब आंदोलन में पड़े हुए हैं। खेती बाड़ी तो नहीं हुआ है, चीजों की महंगाई और बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं। बहुत सारे दवाई अभी नहीं मिल रहा मार्केट में, आपको मालूम है, क्योंकि चीज की महंगाई बढ़ रहे हैं। आपके खेत, आपके फल भी नष्ट हो जाएगा। टाकुटे का जो कहर था, ये कहर में बहुत सारा जमीन नष्ट हो चुका है। खेती कैसे होगा? कुछ दिन पहले यश आया था, ये भी भारी तबाही करके गया है। लोगों का घर उजड़ गया है, उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। समझ आप पा रहे हैं उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? उसीलिए दोस्तों, आमोस की पुस्तक चैप्टर 5 18 से 24 क्या पढ़ता है, लिखा गया है, हम पढ़ेंगे आपके लिए। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो जो उजियाला का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, वो घर में आकर भीतर पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या वो सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसा घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। समझ पा रहे इसका मतलब क्या है? यहोवा का दिन, यानी कि जब प्रभु आने वाले हैं, मगर वो अपने पैर जमीन में नहीं रखेंगे। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन तैयार होता है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, द सेकेंड कमिंग will take place after 7 years of rapture, यानी कि परमेश्वर मध्य आकाश में आएंगे और जो उनकी संतान उनके लिए इंतजार कर रहे थे, विश्वास योग्य जीवन जिया है, पवित्र जीवन जिया है और विश्वास किया कि प्रभु यीशु उन्हें ले जाएंगे, उन्हें उठा लिया जाएगा। इसे कहता है रैप्चर। मगर रैप्चर होने के 7 साल के बाद प्रभु आने वाले हैं। कहां पर? यरूशलेम में, वैली ऑफ आर्मागेडोन में लड़ाई होगा। मगर ये 7 साल बड़ा कठिन होगा। ये समय क्या होगा जानते हैं? दिस इज कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ये समय परमेश्वर, इसको ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। ये डे ऑफ द लॉर्ड होगा। ये समय बहुत घंघोर होगा, ये 7 साल। यानी कि जो भी आप वायरस के विषय में सुन रहे हैं, मौत के विषय में सुन रहे हैं, चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस जो सुन रहे हैं, ये और बदल जाएगा, ये और घंघोर हो जाएगा और कष्टदायक हो जाएगा, जो आप सोच और बयान नहीं कर सकते हैं। बाइबल में लिखा गया है that 7 years of tribulation, it's going to be very, 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 very difficult.
उस समय में क्या होगा, चारों ओर आपको ऑलरेडी यहाँ डिप्रेशन लग रहा है, तब तो आपको रोना पीटना और आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लोग हाय हाय करेंगे। बहुत सारे लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं पर इसके पहले भी आप सुने हुए थे, तब आपके अंदर में पश्चाताप होगा और आप कहेंगे अरे मैं क्यों नहीं सुना, मैं क्यों नहीं अपना जीवन बदला, मैं क्यों नहीं अपने आप को परिवर्तन किया, मैं क्यों नहीं यीशु को अपनाया। तब आप हाय हाय करेंगे, मगर और मौका नहीं मिलेगा। तब एक नंबर दिया जाएगा 666 और ये नंबर शैतान का होगा। ये चिपिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, आपके शरीर में लगाया दिया जाएगा और जो ये नंबर को नहीं लेगा उसका गला काट दिया जाएगा। और ये नंबर 666 जो सिस्टम रहेगा वो चिपिंग कोड के द्वारा आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपको कार्ड्स वगैरह नंबर्स लेके नहीं जाने पाएगा। आपके शरीर में ये चिप आपको सब कुछ का एक्सेस देगा, मगर ये चिप को ले लेगा, ये सर्वदा के लिए शैतान का हो जाएगा, यानी कि नरक के लोग बन जाएंगे, डबल हेड। मगर जो आज वचन सुन रहे हैं, आपके पास मौका है, आप जान रहे हैं कि हम इसे नहीं लेंगे, मगर तब पर भी आप अपने आप को अगर नहीं बदलेंगे, उस दिन हाय हाय का दिन होगा। ऊपर से ओला गिरने वाले हैं, खाना का कमी हो जाएगा, शांति उठा लिया जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, पानी लाल हो जाएगा, ये पैंडेमिक्स और बढ़ जाएंगे और लोगों की मौत होगा। दोस्तों, लोग तब सोचेंगे चलो भाई मैं यहां से भाग जाऊंगा। कहां जाके भागेंगे आप? वचन कहता है कि अगर एक व्यक्ति भागेगा सिन से, वो जाके भालू से मिल जाएगा। उधर भागेगा तो उधर उन्हें सांप काट लेगा। चारों ओर रहेगा अंधकार, रहेगा निराशा, आशा की कोई किरण नहीं होगा उस दिन। ऐसे ही दिन आने वाले हैं। और 21 पद से क्या कह रहा है जानते हैं? 21 से हम लोग पढ़ेंगे 24 तक। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। तब चर्च नहीं होगा। इनफैक्ट चर्च एज अभी खत्म होने ही आया है। यानी कि आप वचन आप सुन पा रहे हैं फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, पास्टर्स को आप फोन कर रहे हैं, आपके विश्वासी भाई बहन को फोन कर रहे हैं। उस दिन वो सब चले जाएंगे। किसको आप फोन करेंगे? पास्टर को नहीं मिलेगा, चर्चेस नहीं मिलेगा, कोई विश्वासी को नहीं मिलेगा, सभाएं बंद हो जाएगा। यानी कि हो चुका है, पूरी तरह नहीं, थोड़े ही दिन बाकी है। प्रभु यीशु मसीह बड़ी जल्दी ही आने वाले हैं और वो उठा के हमें लेके चले जाएंगे। उसके बाद सब कुछ दी एंड क्लोज्ड, दी एंड क्लोज्ड। उसीलिए परमेश्वर अभी भी हमें मौका दे रहा है। 22 पद क्या कह रहा है? चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलि की ओर ना ताकूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना जीवन को नहीं सुधारेगा, मगर वो सोचते कि चलो मैं चर्च में अपना दशवांश को भेंट दूं, मैं डोनेशंस दे दूं, बड़े बड़े काम, चेक और पैसा को मैं दूं, चलो परमेश्वर इससे खुश हो जाता। नहीं, परमेश्वर आपके पैसा की ओर नहीं देख रहा है। मनी इज नथिंग बिफोर गॉड, गॉड इज लुकिंग टू योर हार्ट। परमेश्वर आपके दिल को देख रहा है, आपके आचरण को देख रहा है, आपके जीवन को वो परिवर्तित देखने चाहते हैं। मगर इफ यू आर नॉट विलिंग, आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आप सोच रहे कि पैसों के द्वारा आप प्रभु को खुश करेंगे, आप भ्रमित हैं दोस्तों। गॉड इज नॉट लुकिंग आफ्टर योर मनी। और 24 पद क्या कह रहा है? 23 पद, अपने गीतों को कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुन मैं ना सुनूंगा। बहुत सारे वर्शिप लीडर्स इसी चर्च में, मैं कह रहा हूँ, बीते 17 ईयर्स से हम इस शहर में पास्टर्स हैं। बहुत सारे वर्शिप लीडर्स आज नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें संशोधित करने के लिए कहा कि भाई अपने जीवन को बदल लो, ये अच्छी बात नहीं है, अपने जीवन को सुधार लो। अरे पास्टर जी, आप मेरा पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। मैं देखिए कितना सुंदर गाना गाता हूँ, कितना सुंदर मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ। परमेश्वर कह रहा शांत हो जा बेटा, हो गया तुम्हारा, मैं देख लिया,
मैं तुम्हारा होम बोली, तुम्हारा गीतों से प्रसन्न नहीं हूं, मैं तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी आराधना खोज रहा हूं। और आराधना कैसे किया जाता है? आराधना गीत नहीं है दोस्तों, आराधना सच्चाई और आत्मा से किया जाता है। प्रोस्केनियो, इसका इब्रानी शब्द है प्रोस्केनियो, यानी कि संपूर्ण रूप में परमेश्वर को अपने आप को दे देना, जमीन में झुककर दंडवत करना, यानी कि गॉड आई गिव एवरीथिंग टू यू, यू आर ऑलमाइटी। दोस्तों, आपके गीतों से प्रभु खुश नहीं है। एक परिवार आता था, और एक गवाही मैं बताने चाहता हूं, हर एक शाम को ये परिवार खजड़ी और गीतों को गाते थे, यानी कि उसका एक धार्मिक जीवन धारा को जीते थे। मगर हम लोग कहते हैं कि प्रभु नहीं है आपके इस जीवन में, अपने जीवन को नहीं सुधारते थे। आप जानते हैं क्या हुआ? उनके घर में 3 मौतें हो गया। उनका पति, आगे उनका देहांत हो गया था, फिर पता चला वो आंटी का देहांत हो गया, फिर पता चला उनका बेटा का देहांत होगा, 34 साल का उनका बेटा था, फिर पता चला उनकी बेटी जो बहुत गीतों को गाती थी वो उनका देहांत हो गया। सोचिए, गाना बंद कीजिए, आराधना करना शुरू कीजिए, अपना जीवन को बदलने रखिए। दोस्तों, आज खुदा आपके दिल को देख रहा है। 24 पद क्या कहता है? परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानाद की नाई बहने दो। अपनी बिगड़ा हुआ चीजों को, बिगड़े हुए रिश्ता को खुदा के संग सही कीजिए, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, आपके रॉन्ग्स को राइट कीजिए और खुदा के लिए जिए, खुदा के लिए चलिए। क्योंकि आमोस की पुस्तक 7 अध्याय 8वीं पद क्या कहते हैं जानते हैं? चलिए इसको पढ़ते हैं। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। साहुल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लम लाइन, और बांग्लाয় बोले উলনদড়ি। যারা রাজমিস্ত্রি হয় তাদের কাছে এটা দেখতে পাবেন, এই উলনদড়ি সাহুল নিয়ে তারা কি করে? তারা দেওয়াল বানায়, যারা সোজা হয়, সোজা। এটাই হচ্ছে মাপকাঠি। আজকে প্রভু তার উলনদড়ি আমাদের উপরে ফেলে আমাদেরকে মাপছে, আমরা সোজা আছি তো? যদি একটু টেড়া বেঁকা হই, অনেক লোক আছে, হ্যাঁ প্রভু আমি সবই ঠিক করি, কিন্তু আমি এইটা বদলাতে পারবো না। প্রভু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু এইটা তুমি আমাকে বলো না যেন আমি বদলাই, আমি এইটা বদলাতে পারবো না। প্রভু বলছে পুরোটাই বদলাতে হবে, কারণ কি প্রভু টেড়া বেঁকা লোকদেরকে নিয়ে যাবে না। স্বর্গতে প্রভুর একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে। তার উত্তম সৃষ্টি লুসিফার, যাকে সে বানিয়েছিল স্বর্গদূত, এত সুন্দর বানিয়েছিল, কিন্তু সেই কি করলো? প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। ওই জন্য প্রভুর একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, সে টেড়া বেঁকা লোকদেরকে স্বর্গ নিয়ে যাবে না। ওই জন্য টেড়া বেঁকা যদি আপনি জীবনযাপন করছেন, দয়া করে আজকে আমার অনুরোধ, ঈশ্বরের বাক্যর দ্বারা নিজের জীবনকে সোজা করুন, কারণ কি প্রভু মাপবে। বহুত লোক বলছে, ও আমি তো স্বর্গ যাবই, আমি কি যিশুকে তো মানি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রভু কি আপনাকে নিয়ে যাবে? প্রভুর চোখে কি আপনি সঠিক জীবনযাপন করছেন? ভাই বোনেরা, আজকে কিন্তু প্রভু তার ন্যায় বিচার করতে চলেছে, করবে কিছুদিনের মধ্যেই, কিন্তু এখন মাপছে। আজকে প্রভু কিন্তু দেখছে, নিজের জীবনকে বদলে দিন। আর আজকে আমি আপনাদেরকে, বিশেষ করে যারা প্রভুতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন, আপনাদের জন্য একটা সুখবর এনেছি। আপনাদের আমি নিরাশ করতে চাই না। আমি জানি আজকে আমার এই বাক্যকে 2 শ্রেণীর মানুষ শুনছে। এক শ্রেণীর মানুষ যারা এখনো নিজের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে প্রভুকে দেয়নি, আর আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা আজকে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। তারা বলছে, প্রভু তুমি কখন আসছো? প্রভু আমি এত বছর ধরে আমার জীবনকে পবিত্র রেখেছি প্রভুকে তোমার জন্যে। আজকে জানেন আপনাদের জন্য প্রভু কি খবর এনেছে? আসুন, প্রকাশিত বাক্যর 4 অধ্যায় 1 পদ কি বলছে?
इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसमें मैंने पहले तुरही में से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। Amen. Hallelujah. This is a खुशखबरी. This is a good news today. Listen, what is this good news? The good news is this. स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ है, खुल रहा है. I saw a door standing open in heaven, यानी कि खुला हुआ है. और एक आवाज मेरे पास आया, तुरी फूका गया. तुरी कब फूका जाएगा? जब परमेश्वर अपने लोगों को लेके आने वाले हैं. इस पृथ्वी से मध्य आकाश में तुरी फूका जाएगा. They will be blowing of the trumpet and the twinkling of the eyes. The rapture would take place. इसका मतलब तुरी फूका जाएगा और आंख पलक झपकते ही परमेश्वर के लोग उठा लिया जाएंगे. शायद एक पत्नी विश्वासी थी, पति नहीं, पत्नी चली जाएगी, पति रह जाएगा. शायद उस घर में बच्चे लोग संडे स्कूल में आकर प्रभु को सुना, जाना, अपनाया और प्रभु के लिए इंतजार करता. बच्चे चले जाएंगे, माँ बाप रह जाएंगे. मगर जो चले जाएंगे, खुदा कह रहा है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसके बाद क्या होने वाला है. यानी कि खुशखबरी ये है उन सारे लोगों के लिए जो तैयार है कि हम लोग उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग से हम लोग देखेंगे वो 7 साल क्या होने वाला है. मगर उस कष्ट की घड़ी में हम लोग नहीं रहेंगे. उस समय हम लोग स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर के संग रहेंगे, मेमना की विवाहों में हम लोग रहेंगे वहां. और अगर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय चैप्टर 6 से आप पढ़ने लगेंगे, बड़ी दुख और कठिन बात को वहां लिखा गया है. वहां लिखा गया है रैप्चर के बाद ही एंटी क्राइस्ट का एंट्रेंस हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा. यानी कि वो पाप पुत्र, वो ख्रिस्ट विरोधी वो आ जाएगा, उसकी हुकूमत चालू हो जाएगा. 7 साल शैतान को पूरा खुला उसको मौका मिलेगा. वही रेवल्यूशन में लिखा गया है, जब उसे फेंक दिया गया पृथ्वी में, तब उसका तांडव चालू होगा. यानी कि अभी मध्य आकाश में है, वो पूरी तरह पृथ्वी में गिरा नहीं. रैप्चर के बाद वो आ जाएंगे. उसीलिए बुक ऑफ थेसलोनिकल्स कहते हैं, God has not allowed the man of lawlessness to come yet. परमेश्वर, पवित्र आत्मा अभी तक उसे मौका नहीं दिया है पूरी तरह काम करने के लिए, उसे रोक कर रखा है. मगर जब रैप्चर हो जाएंगे तब वो आ जाएगा, उसका एंट्री हो जाएगा. और जब वो आएगा पृथ्वी से शांति चला जाएगा, मौतें बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगा, मृत्यु और गला काटा जाएगा. समझ पा रहे क्या होने वाला है? और ये महामारी और बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा दोस्तों. उसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 और 12 पद क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली. Amen, hallelujah दोस्तों. And they had defeated him. वो माने कौन? परमेश्वर के लोग. वो माने परमेश्वर के लोग. defeated him शैतान को by the blood of the lamb and by their testimony, मेमना के लहू से और अपने गवाहियों के द्वारा. आज हम जिंदा हैं. मेरे पत्नी से सुबह में बात कर रहा था, मैं कहा कि सरिता कभी कभी बड़ा निराश लगता है, पूछते हैं कि प्रभु आप कब आने वाले हैं, दुखी हो जाता. मगर मेरे बीवी ने मुझे कहा एक अच्छी बात है, आज देखो हम लोग सब कोई जिंदा है, हम लोग सब कोई
एक संग हैं, ये खुशी की बात है। सचमुच अगर आज हम लोग, मेरे परिवार सुरक्षित है, किसकी बदौलत? प्रभु यीशु के बदौलत। कोरोना वायरस हुआ नहीं, मरे नहीं, सारी चीजों को प्रभु ने प्रबंध किया। बच्चों को देखते खुशी लगता है, चर्च में आते हैं प्रभु का वचन देने के लिए, अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। दोस्तों, आज सचमुच मेरे दिल में एक ही प्रार्थना है, प्रभु ना मुझे सोना, ना चांदी, ना नाम, ना जश, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग चाहिए। मुझे स्वर्ग जाना है प्रभु। और मैं कैसे जाऊंगा? मेरे गवाही के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह में अटल रहकर। प्रभु का लहू मुझे घेरे हुए हैं, प्रभु का सुरक्षा हमारे ऊपर है। प्रभु मुझे तैयार कर रहे हैं और मैं इंतजार कर रहा हूं उन्हें। आज मेरे कोई चीजों का ऊपर अट्रैक्शन नहीं है, सारे अट्रैक्शंस को मैंने हटा दिया। कष्ट लगा, तकलीफ हुआ, मैं जी रहा था, मगर बीते 1 साल से मेरी प्रस्तुतिकरण घंघोर हो गया। आज मैं प्रस्तुत हूं। अगर प्रभु आ जाएगा मैं आज ही चला जाऊंगा। हालेलुया। अगर प्रभु कल आएगा, कल भी मैं प्रस्तुत रहूंगा। मेरे पास कोई रीजन नहीं है, यानी कि कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं पाप करूं। प्रभु अगर आप नहीं आएंगे मैं पाप फिर से करूं। क्यों करूं? मैं तो प्रभु का हूं, प्रभु तो मुझे खरीद लिया है। अगर मैं इंतजार करूंगा। और 12वीं पद क्या कह रहा है? इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्योंकि शैतान जानता है उसकी थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान बौखला गया है, शैतान डर गया है, क्योंकि वो जानता है उसके अंतिम क्या होने वाला। वो जानता है वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ था, वो हारा हुआ ही रहेगा। वो कुछ भी कर ले 7 साल, मगर आखिर में मेरा खुदा आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आ रहा है। उसीलिए दोस्तों ये वचन हमें उत्साहित करता, कहता है कि आनंदित हो जो स्वर्ग में रहते हो। यानी कि तब तक तो हम चले जाएंगे स्वर्ग में, यानी कि मुझे इस पीड़ा से गुजरने की जरूरत नहीं है। मगर हाय हाय पृथ्वी में रहने वाले लोग, उस समय कठिन होगा। उसीलिए दोस्तों क्यों उस कठिन समय में अब रहेंगे? क्यों अब प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं करते? अभी কেন নিজেকে বদলাচ্ছেন না? কেন এখনো অপেক্ষা করছে? কার জন্যে? কার মোহতে? নিজের চোখকে বন্ধ করুন। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, आज की इस वचन के द्वारा तूने फिर से मुझे बल दिया, शक्ति दिया। প্রভু ধন্যবাদ, তুমি আমাকে বল দিয়েছো, শক্তি দিয়েছো। আমি প্রার্থনা করি আজকে যারা তোমার বাক্য শুনেছে প্রভু, তাদেরও জীবনে তুমি এক গভীর কার্য করো প্রভু। তাদেরকে তুমি স্পর্শ করো, তৈরি করো, প্রস্তুত করো প্রভু তোমার আসার জন্য। অনুগ্রহ পরিবার যেন প্রস্তুত থাকে। আজকে যারা শুনছে প্রভু, তারা যেন নিজের মনকে ফেরায়। পবিত্র আত্মা তুমি তাদেরকে সাহায্য করো, তাদেরকে বল দাও, তারা যেন রয়ে না যায় সেই দিনের জন্য, যেন আমরা সবাই চলে যেতে পারি প্রভু। আর সেই জন্যই প্রভু গো, আজকে এই বাক্য তুমি দিয়েছ, আমি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি প্রভু। আমি প্রার্থনা করি আজকে যে বাক্য শুনেছে প্রভু, তারাও যেন অন্যদেরকে বলে বেড়ায়। আর প্রভু আমরা যেন সবাই তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারি। ধন্যবাদ পিতা, এই প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন। আর ব্লেস ইউ। প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। जय यीशु सबाई के, जय मसीह की। मैं आज अभी वचन सुन रही थी, एक वचन ने मेरे दिल में बहुत आनंद दिया कि स्वर्ग में वो द्वार खुल रहा है। मैं तो बहुत आनंदित हूँ कि पिता इतना साल का जो वॉक था, जो आपके संग चली, अब वो पेड ऑफ होने वाला है। अब उसका पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। वो स्वर्ग में वो द्वार हमारे लिए खुल रहा है और वहाँ लिखा है
कहा अब तू ऊपर आ जा और तू यहाँ से अब देखेगा आने क्या क्या चीज घटने वाला है। इस वचन ने मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद खोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ आप भी आनंदित हो रहे हैं जैसे जैसे पिता का आने का दिन निकट आ रहा है। अपने आप को तैयार रखें, प्रस्तुत रखें और परमेश्वर में मगन रहें। बाको आज के परिष्कार बोलेছে পাপ করো না, পাপ করতে গেলে বিনাশ অপেক্ষা করছে, কিন্তু যদি আমরা পবিত্র জীবন যাপন করি স্বর্গ রাজ্যর দরজা খুলছে আমাদের জন্য। আমি কিছু কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে চাই। থার্সডে বৃহস্পতিবার আমাদের আমোসের পুস্তকের বাইবেল স্টাডি হবে, শুক্রবারও হবে। সমস্ত চার্চ জানে নিজে নিজে টাইমিংয়ে আপনাদের লিঙ্ক পাঠানো হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন আর ঈশ্বরের সাথে এক মনে থাকবেন। আর আপনাদেরকে এটাও জানাতে চাই অনুগ্রহ মিশন ক্লিনিক অনলাইন ডক্টর ফ্যাসিলিটি আরম্ভ করেছে। আপনি একটা কল করতে গেলে আপনাদের কাছে সবার কাছে নাম্বার আছে আমাদের, একটা কল করতে গেলে আপনি থ্রু ভিডিও কনফারেন্সেই নিজের চিকিৎসা করাতে পারেন। যদি আপনি দুর্গাপুরে থাকেন তাহলে আমরা ওষুধ পাঠাতে পারবো, আপনার বাড়িতে হোম ডেলিভারি দিতে পারবো, আপনার বাড়িতে যে ব্লাড কালেকশন করতে পারবো। যদি দূরে থাকেন অবশ্য অন্তত আমরা অনলাইন চিকিৎসা অবশ্যই করাতে পারবো। ভালো থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন, ঈশ্বরের মধ্যে আনন্দিত থাকুন। গড ব্লেস ইউ।